Hello students, welcome back. Children, in the last lecture we have discussed the MCQs for module number 1. Today's lecture we will be discussing MCQs for module number 2. Module number 2 children, as you all know, it's agriculture during post-reform period. Children, 1991 का जो year है उसको हम लोग reforms करके refer करते हैं यहाँ पे. And when we refer to a post-reform period, we are actually referring to the years after 1991. So 1991 ka policy children was actually focusing on industries, the insurance sector, trade, capital flow and all those things. But somewhere I think like we had just ignored about the agricultural sector. So in the year 2000 we brought out a new policy that was called as NAP 2000, National Agricultural Policy 2000. So here we study entirely about agriculture and agricultural finance, and the third chapter children it goes for agricultural marketing. Okay, so let's begin with the MCQs related to our chapter number 5, that's National Agricultural Policy 2000. So what does the policy have to say? Question number 1 children, choose the correct alternatives and rewrite the statements. Question number 1, the objective of National Agricultural Policy 2000 is to achieve agricultural growth rate of children. NAP 2000 का जो अपना growth rate था, targeted growth rate, it was 4%. याद रखना कि like we being an agricultural country needed to show more efficient performance for agriculture. So that target was set out in agricultural policy of 2000. जहाँ पे हमने बोला था कि like हर साल we wanted to achieve an annual growth rate of 4% per annum. Question number 2 children, the average agricultural growth rate since 2000 is dash. Options are above 4%, less than 4%, 4% या फिर 6%. जबकि हमारा टारगेट बच्चे लोग था कि हर साल हम लोगों को कम से कम 4% का ग्रोथ रेट रिपोर्ट करना था. It is a truth and it is a fact that since 2000, agricultural growth rate has been well below 4%. मतलब 4% से भी कम ग्रोथ रेट हमने रिकॉर्ड किया हुआ है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, one of the objectives of NAP was to dash. अच्छा, ऑप्शन नंबर 1, A, to get the best technology as soon as possible, to make agriculture more market oriented, to get the best price for agricultural goods, or to initiate more irrigation facilities. Now, I suppose ये जो word यहाँ पे use किया हुआ है market oriented. इससे पहले क्या होता था बच्चों लोग, like in India we treated agriculture as a way of life. We only grew those crops which were essential for our living. We did not produce surplus. Now there was a time, children, to make agriculture market oriented. That means farmers should grow those crops which are demanded in the market. So अपना आंसर बनता है बच्चों लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर बी के साथ. Okay, that we wanted to make agriculture oriented, or we wanted to make agriculture market oriented. अच्छा, next question is on your screen children. Okay, ICAR refers to dash. अभी फुल फॉर्म्स बनाते वक्त सबके सब फुल फॉर्म से रहेंगे. आपको देखना है कि इसमें से वैलिड वाला कौन सा है. तो पहला इंडियन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज. ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है बच्चों लोग. इंस्टीट्यूट ऑफ करियर इन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, गलत जवाब. इंडियन काउंसिल फॉर एरोनॉटिकल रिसर्च, गलत. इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, पढ़ के देखने का, जिसका साउंड आपको लगता है कि अभी सुना हुआ है, साउंड अच्छा आता है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो. And the answer is point D, Indian Council for Agriculture Research. Question number 5 children, the new policy aims to dash, liberalize internal trade. इंटरनल मतलब चलो डोमेस्टिक, इंडिया के अंदर ही जो एग्रीकल्चर का ट्रेड होता है उसको लिबरलाइज करने की जरूरत थी. एक्सपोर्ट्स को हम लोग प्रमोट करना चाहते थे, लिबरलाइज एक्सपोर्ट्स. अच्छा, both A and B and none of the above. तो मुझे लगता है कि like answer is at point C. We wanted to liberalize internal trade as well as exports को भी हम लोग liberalize करना चाहते थे. Okay? अच्छा, then we go towards next chapter in the same model children. Let's see what the topic is about. It's agricultural pricing.
choose the correct alternatives and rewrite the statements. Agricultural prices in India are dash. बच्चों एग्रीकल्चर में फार्मर्स को जो प्राइसेस मिलते हैं, द प्राइस विच ही फेचेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड दैट दे आर नॉन रेम्यूनरेटिव प्राइसेस ना. अच्छा, तो ऑप्शंस क्या क्या है? सर्टेन मतलब गारंटीड है कि लेगा मुझे इतना भाव मिल ही जाएगा. गलत. रेम्यूनरेटिव तो है नहीं, कुछ ज्यादा रिटर्न्स भी नहीं मिलते, तो अपने पास ऑप्शन बचता है बच्चों लोग पॉइंट बी के साथ, दैट एग्रीकल्चरल. यस, सो आंसर चिल्ड्रन इज लाइक prices in India or the agriculture prices in India are very word to use नहीं किया हुआ है, uncertain करके word use किया हुआ है, so that should be the answer that we have children. Okay. अच्छा, question number 2, minimum support price guarantees the farmers with dash. बच्चों हाई इनकम जनरेट कराने की कोशिश तो है नहीं है, it's not a competitive price children. अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? लाइक दैट्स द फ्लोर प्राइस. उससे ज्यादा प्राइस मिल सकता है लेकिन उससे कम नहीं, कम से कम उतना. इट्स लाइक अ बेंचमार्क. सो आंसर चिल्ड्रन इज द फ्लोर प्राइस. मिनिमम कॉस्ट प्लस मार्जिन, नो, दैट बेसिकली गोज फॉर व्हाट्स कॉल्ड एज द स्वामीनाथन फॉर्मूला जो था, लाइक आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का, उसके ऊपर 50% प्रॉफिट देने का. सो मिनिमम कॉस्ट प्लस मार्जिन बोला जाता है उसको. ओके. Question number 3 children, issue price is at which the government supplies for. You remember children, एक था procurement price, एक था issue price और एक होता है minimum support price. तो what is issue price? चलो गवर्नमेंट फार्मर से बहुत सारा अनाज परचेस करके रखती है और ये जो अनाज होता है चलो उसको फूड सिक्योरिटी के लिए रेशन शॉप्स के जरिए गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है. So issue price is at which the government supplies food grains in the open market. नहीं, middleman को नहीं दिया जाता है चलो, departmental stores को भी नहीं. तो चलो this food grains are supplied to the ration shops. Ration shops in turn children will try to give these food grains to the poor families and those who are eligible to get the benefits of food securities. Okay? अच्छा. Next. Question number 4 children, fair price shops are meant to protect the interests of dash. बच्चों फेयर प्राइस शॉप्स किसके लिए होते हैं? अभी गवर्नमेंट फार्मर से अनाज खरीद लेती है, उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रॉमिस किया गया था वो पे किया जाता है. बाद में बच्चों लोग ये मतलब रेशन शॉप से बच्चों लोग फार्मर्स को फायदा होता है? नहीं. ट्रेडर्स को फायदा होता है? नहीं. मिडलमैन को फायदा होता है? नहीं. तो जो गरीब ग्राहक होते हैं बच्चों लोग, कौन? दो पुअर कंज्यूमर्स. तो उनको हम लोग ये सस्ते दाम में या फिर कभी कभी फ्री में बच्चों लोग ये सब अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सो आंसर इज पुअर कंज्यूमर्स. क्वेश्चन नंबर 5, प्राइस पॉलिसी मेनली बेनिफिट्स डैश. प्राइस पॉलिसी ज्यादातर किसको बेनिफिट करता है? प्राइस का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी चलन, इट्स नॉट बेनिफिटिंग द स्मॉल फार्मर्स. रीजन ये होता है कि छोटे फार्मर्स के पास इतना एक्स्ट्रा सरप्लस होता नहीं कि वो जाके मार्केट में बेचे या फिर गवर्नमेंट को बेचे. मार्जिनल फार्मर्स का प्रोडक्शन ही कम होता है कि वो लोग अपने सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं. ओल्ड फार्मर्स का कुछ लेना देना नहीं है. तो इसका मतलब कि ये पॉलिसी से बड़े बड़े फार्मर्स को ही बेनिफिट देके जाएगा. गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कि ये पॉलिसी के जरिए हम लोग कम से कम इतना प्राइस देंगे. किसके लिए प्राइस देंगे बच्चों? जो आगे उनको बेचेगा. कौन बेचता है? जिसका प्रोडक्शन ज्यादा है. प्रोडक्शन ज्यादा है मतलब वो लोग लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जमींदार होते हैं. तो बड़े बड़े फार्मर्स को ये प्राइस पॉलिसी का बेनिफिट्स मिलता है. क्वेश्चन नंबर 6, फार्मर्स आर नॉट एबल टू रियलाइज बेटर प्राइसेस बिकॉज ऑफ डैश. फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट के लिए अच्छे दाम नहीं मिलते बिकॉज देयर इज लैक ऑफ ग्रेडिंग. बच्चों लोग फार्मर पता है लॉट में बेचता है, उसको ग्रेड नहीं कर पाता है. आप किसी भी शॉप में जाके देखोगे तो आपने देखा चावल को कैसे ग्रेडिंग, ये 30 वाला है, 35 वाला है, 40 वाला है, 60 वाला है, 70 वाला. एप्पल्स को भी अगर आप देखोगे 200 वाला है, 150 वाला रहता है. दैट इज चिल्ड्रन कॉल्ड एज ग्रेडिंग. लेकिन अ फार्मर डज नॉट हैव द स्किल्स फॉर ग्रेडिंग. दूसरा, लैक ऑफ मार्केट नॉलेज. उसको अच्छा भाव नहीं मिलता क्योंकि उसको ये पता नहीं होता कि लाइक मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कौन कौन से वैरायटीज है, कौन से मार्केट में अच्छा भाव मिल रहा है. और सी वाला आता है चलो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज. जैसे ही प्रोडक्शन आता है चलो उसको बेचना पड़ता है. क्यों? क्योंकि उसके पास गोडाउन नहीं होता जहां पे वो स्टोर करके रख सके. अगर उसके पास गोडाउन होता था तो जब तक अच्छा भाव नहीं मिलता था तब तक वो उसको गोडाउन में
होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता था उसका. सो दिस इज ऑल्सो, मतलब मुझे लगता है कि लाइक ए बी ऑप्शन बराबर है, ए बी बराबर है, ए बी बराबर है, तो फिर अपना फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों लोग? पॉइंट डी विच टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ दी अबव. फिर फार्मर्स नीड शॉर्ट टर्म लोन फॉर डैश. शॉर्ट टर्म लोन्स काय के लिए जरूरत होती है बच्चों लोग? एक, उसको सीड्स खरीदने हैं. दूसरा, उसके कंजम्पशन नीड्स होते हैं बच्चों लोग, उसके घर का खर्चा वगैरह होता है. या फिर फर्टिलाइजर्स खरीदने होते हैं बच्चों लोग, इक्विपमेंट परचेस करना होता है. तो इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों लोग? ऑल ऑफ दी अबव. तो कभी कभी आप कुछ आंसर्स ऐसे ही गेस करके भी अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों लोग. अच्छा, देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन हियर, दैट इज एग्रीकल्चरल फाइनेंस. अभी एग्रीकल्चरल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, मेजर पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज सप्लाइड बाय डैश. ज्यादातर जो फार्मर्स को लोन्स लगते हैं बच्चों, जो कर्जा लगता है वो कौन प्रोवाइड करता है? मनी लेंडर्स? नो. कोऑपरेटिव बैंक्स? नो. तो ऑप्शन आता है बच्चों लोग कमर्शियल बैंक्स. तो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड मेजॉरिटी ऑफ द credit that is required by the farmers or the agricultural sector. Non-banking financial corporations, no, they are not much involved into the agricultural credit. Question number 2, Kisan credit card was introduced by dash. Actually, if you remember, India में जो apex authority आता है for agricultural finance is called as National Bank for Agricultural and Rural Development. उसका short form आता है NABARD. सो जितना भी क्रेडिट मिलता है इधर ही फाइनेंस होता है. इट्स नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर एक काम के लिए, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एग्जिम बैंक आता है. छोटे इंडस्ट्रीज के लिए भी अबाउट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. जो नॉर्मल इंडस्ट्री है उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है. वैसे एग्रीकल्चर को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई ने एक ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है नाबार्ड. किसान क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉट नेशनलाइज्ड बैंक्स. सो ये सब गलत ऑप्शन से, तो अपना ऑप्शन आता है नाबार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फार्मर्स रिक्वायर लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर डैश. कंजम्पशन, घर के खर्चे के लिए नहीं. सीड्स और फर्टिलाइजर्स के लिए नहीं. परचेस इरिगेशन सेटअप हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिल्ड्रन इट इज परचेस ऑफ लैंड. मतलब जमीन खरीदने के लिए उनको लॉन्ग टर्म क्रेडिट की जरूरत होती है. क्वेश्चन नंबर 4, regional rural banks were established to provide finance to dash. Small and marginal farmers, जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन होता है. विलेज आर्टिसंस यानी कारीगर लोग. एग्रीकल्चरल लेबर यानी मजदूर लोग. तो मुझे लगता है सबको प्रोवाइड करते लोन्स रीजनल रूरल बैंक्स. तो अपना एक्चुअल आंसर रहेगा चिल्ड्रन ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट, RRBs were established to provide credit to dash. रीजनल रूरल बैंक्स किसको लोन्स देने के लिए सेटअप किए गए थे? ओनली टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. गलत. ओनली मतलब यहाँ में जनरली गलत ही होता. बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सही हो सकता है. ओनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज गलत, क्योंकि नाम क्या है चलो रीजनल रूरल बैंक, तो सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस नहीं कर सकते. नन ऑफ द अबव भी गलत है. तो आंसर चिल्ड्रन इज बोथ एग्रीकल्चरल एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. अभी मैंने बताया चलो कि लाइक इट्स for the small and marginal farmers. तो बाजू में क्या दिया हुआ था? Artisan. So artisan children is a part of non-agricultural activities. RRBs were established in dash. 2005 गलत, 1995 गलत, 1985. So final answer children is 19A. Factual question है children. 1975 में RRBs को सेटअप किया गया था. Question number 7. Short term period of agricultural loans is up to dash months. Up to dash months, so it's like around 15 months के आसपास रहता है बच्चों लोग. 12, 17, 20 are invalid options. So short term loans for agriculture are up to 15 months. Okay. बच्चों लोग हर एक जो MCQ हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे लिए कुछ नया इंफॉर्मेशन लेके आता है. कुछ चीजें आपको अच्छे से बाहर करके भी रखनी है. And then the last chapter children that we have from agricultural sector is agricultural marketing. Again, the question reads, choose the correct alternatives and rewrite the statement. Question number 1, the demand for agricultural commodities is dash. Very elastic. Okay. ठीक है. Unit elastic, highly elastic. तो यहाँ पे दिया है बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे less elastic.
एग्रीकल्चरल कमोडिटी जो होता है बच्चों जनरली नेसेसिटीज में काउंट होता है, तो उसका डिमांड इनइलास्टिक होता है। अभी इनइलास्टिक मतलब जैसे चावल बच्चों कितना भी हो सस्ता महंगा खरीदना ही पड़ता है। ऑनियन चिल्ड्रन व्हेन द प्राइसेस दे स्काई रॉकेट, मतलब भले फॉर एग्जांपल के लिए आपको बुरा लगता रहेगा बट वी नीड टू परचेज देम बिकॉज दे ऑलमोस्ट फॉर्म आवर नेसेसिटीज। ओके, सो लेस इलास्टिक इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 2 children, agmark, if which was read as agricultural marketing enables to ensure dash। बच्चों किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हमने एगमार्क के बारे में पढ़ा था नागपुर में बच्चों, अभी टोल के लिए एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का टेस्टिंग होता है और जो प्रोडक्ट्स क्वालिटी से गुजरते हैं तो वो आपको उस प्रोडक्ट के क्वालिटी का गारंटी देते हैं कि लाइक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से पास हो क्या है, मतलब आप उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। और अगर एगमार्क से उसको स्टैम्प किया गया तो इसका मतलब ये भी है कि उसको एक अच्छा भाव मिल सकता है। ओके, जैसे ISI मार्क होता है, BIS का स्टैंडर्ड आता है, हॉलमार्क आता है, सो अच्छा प्राइस प्लस बेटर क्वालिटी। सो ऑप्शन ए चिल्ड्रन इज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इज बेटर प्राइस। अच्छा, तो मुझे लगता है दोनों भी आ सकते हैं, इसलिए वी कैन क्लिक ऑन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, market information reduces exploitation of dash। अगर कुछ लोग मैं एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाता हूँ, मुझे पता नहीं कि उसका भाव क्या है, तो मैं सस्ते में बेच के आ जाऊंगा। अच्छा, मैं एक मार्केट में जाके बेचा तो पता चला कि दूसरे मार्केट में अच्छा भाव मिल रहा था। तो मार्केट का सब इंफॉर्मेशन मिलने से मुझे लगता है कि लाइक फार्मर्स को ज्यादा प्रॉफिट होगा, ट्रेडर्स को नहीं, नॉट ए एंड बी, कस्टमर्स को भी नहीं बच्चों लोग। It's going to benefit the farmers by getting proper price for their product. Question number 4, dash of goods is necessary to avoid wastage and spoiling। अनाज बच्चों होता है उसको वेस्ट नहीं करना, स्पॉइल नहीं करना, तो आपको लगेगा बच्चों गोडाउन, स्टोर हाउसेस, वेयर हाउसेस, तो इट्स लाइक द स्टोरेज फैसिलिटी। ओके, तो शॉर्टेज इज इनवैलिड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी भी नहीं चलेगा। At present there are about dash primary marketing societies in the country, it's around 4000 children, 4000 के आसपास आपको एग्रीकल्चरल प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटीज मिल जाएंगे। अच्छा, एंड फाइनली द मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमिटी, दैट इज APMC। APMC वार्षिक के बारे में सुना है बच्चों हम लोगों ने, कृषि बाजार समिति करके बुलाता है। इट वाज पास्ड इन द ईयर 2003, तो 2003 में एक्ट पास किया गया था। ओके, अच्छा, नाउ मैच्योरिटी, दिस इज अ वेरी इजी मॉडल चिल्ड्रन एज फार एज योर, अगर आपको MCQs आते तो आप आसानी से बच्चों इसमें स्कोर कर सकते हो, मॉड्यूल नंबर 1 एज वेल एज मॉड्यूल नंबर 2। ओके, सो ये थे बच्चों लोग कुछ MCQs जो अपने फर्स्ट मॉड्यूल से रिलेट कर रहे थे। ठीक है, इन द कमिंग लेक्चर्स चिल्ड्रन आई विल बी गोइंग फॉर मॉड्यूल नंबर 3 एंड मॉड्यूल नंबर 4 एंड होप सो you should be better prepared children। पढ़ते रहना, आपके पास बुक्स रहेंगे तो बैक साइड में भी कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आंसर्स भी रहते हैं चिल्ड्रन, तो आप सिर्फ रीड भी करोगे तो भी आपके माइंड बैठ जाएगा। तो जब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सके, अच्छे से पास हो सकते फिर आप लोग। ठीक है, एनी डाउट्स ऑलवेज वेलकम चिल्ड्रन, गेट योर डाउट्स क्लियर्ड, बट जस्ट मेक इट श्योर दैट यू हैव सम बुक विथ यू। अपने सिर्फ नोट्स से बच लो, उसके जरिए आपको MCQs नहीं तो कहीं से आप मनन प्रकाशन या फिर कोई भी बुक, उसके बैक साइड में बहुत सारे MCQs डिस्कशन के साथ दिए रहते हैं, वो भी आप सॉल्व करना। तो उतना भी पढ़ के जाओगे तो भी आपका इकोनॉमिक्स का पेपर बच्चों बहुत आसान जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद इन 1 or 2 days एंड वी विल बी डिस्कसिंग मॉड्यूल नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चिल्ड्रन। सो दैट्स ऑल, बाय एवरीवन, टेक केयर।